today's knowledge session on uses of waterproofing chemicals and construction chemicals organized by Bulwark Conchem. Before proceeding towards the session, would like to discuss some points. Please keep your sound on mute during this session. We will discuss all queries after the completion of the program. If you have any questions, those will be addressed. Now, I would like Ms. Ankita Singh to give introduction about Bulwark Content. Please join, please, Ms. Ankita, give a little introduction about the Bulwark Conchem. Good evening, all. Welcome on board. I'm Ankita. I've joined as a marketing consultant with Bulwark, and I would like to tell you. Bulwark is manufacturer of construction chemicals, contributing towards Make in India concept, and it is having a technical collaboration with Silk Road, Korea. Some of our valuable clients are NDMC, PWD, DMRC, MSRDC. Thank you. Thank you, Ms. Ankita. With due to respect, I would like to welcome our business head, Mr. Vindesh Pandita, having a tremendous experience in construction chemical fields, more than 20 years, and Bulwark team is very much blessed with his continuous guidance. So I would like to call Mr. Pandita. Good evening, everybody. On behalf of Bulwark Conchem, I would like to welcome you all, and it is nice to have an interactive session with you. Just to add on what Ankita said, we are a company in the manufacture of construction chemicals, and I really thank you for your valuable contribution and time taken out for us today. As far as our Bulwark Conchem working system is concerned, we have worked on two verticals precisely. One is on a distribution network, one is on the infra network, right? And distribution is a traditional sales we do across through our distribution channels across all India. And we have around nearly 100 distributors working for us right now across all India. And another vertical is infra, where we do serve a lot of clients. As Ankita said, PNC is there, long big drive which supply to everybody, right? And we have a product mix which is starting from the admixture to the end of the construction. When we finish the construction, all products procured by you is in the kitty of Bulwark Conchem, so you don't have to go somewhere else for any of the products. So we believe in keeping the customer excited every time, and we believe in our innovations. So we give the new innovative products to the people who are in trade doing the construction chemical business. And our motto and our vision is only one thing, that we believe in keeping the degree of the customer satisfaction at high level. So talking on those, I will not forget to share with you the blessings which we are getting from the MD, Mr. Mihir Shah. It is because of his guidance, we all are here supporting you, making you knowledgeable about the construction chemical products and enhancing your skills so that you deliver the better result of the product at the marketplace. So I once again welcome you all, and it will be a very interactive session. There will be question and answer session for you at the end of the program, and you please have the session. Be have your knowledge ready, have your questions ready. To be honest, and I wish you all the best, and let us have a very conducive and constructive discussion, which will help all of us to move forward. I once again wish you all the best, and thank you so much. Thank you, Mr. Vindesh Pandita. Now, I would like, first of all, I would like to welcome the eminent professor of SGSITS, Engineer Vivek Tiwari, to share his valuable inputs. Mr. Vivek Tiwari.
I think he's not on the line. Hello, Suresh? Yes, sir, I can hear you. Suresh? I'm trying to contact Vivek, sir. Just give me a minute, sir. I think there's some connection problem from his side. Please try to enable my sharing screen so that I can share the PPT with you on. Sure, sir. Okay. So can you try again? Thank you. Okay. I believe Okay, Vivek sir has joined, and please, anyone that is annotating on the screen, please do not do that as it disturbs the whole session. If you're not interested, please just do not do that. Vivek sir is here. ये सारा मेरा स्टाफ है लोग ज्वाइन किए सब स्टाफ है हमारा नहीं स्टाफ भी है अदर्स Vivek sir, whenever you're ready. Hello, Shirish. कॉन्फ्रेंस होती है दाल Shirish. Yes, sir. अरे मेरे में आवाज क्यों आ रही है दो बजे भी हो गए इसमें ऑनलाइन में पेंडल भी है 101 करोड़ हो गए हाँ ऐसे वो भी होंगे ना इसमें सब है ना कलीन सर संजीव सर वगैरह पता नहीं कौन होंगे Hello. Yes, sir, you're audible. Hello. Yeah. Is it audible? Yeah. Is it audible? yes, audible, Mr. Tiwari. Welcome, welcome, Mr. Tiwari. Welcome, Mr. Tiwari, sir. Shall we Yes, start? I again say that I would like to welcome the eminent professor of SGSITS, Engineer Vivek Tiwari, to share his valuable inputs. Please, sir. Thank you, Bulwark Content. Thanks for admiring our institute. हमारा इंस्टीट्यूट करीब 60 साल पुराना है और हमारा ये इस कार्यक्रम से जुड़ने का मकसद इस विषय से नहीं Yeah. Hello. Yes, sir, your audio is much better. Yeah. Thanks, बुलवर्क कॉनकैम. आप लोगों ने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया. बेसिकली हमारे साथ जितने भी छात्र जुड़े हैं, जो इंडस्ट्री पर्सन्स जुड़े हैं, जीएसआईटीएस का हमेशा से ही शोध आधारित कार्यों से जुड़े रहने की है और कई जगह हो सकता है कि भारी बरसात के कारण प्रॉब्लम्स है. तो मोस्टली हमारे पास जिस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं, केस स्टडीज आते हैं,
कि हमें कौन सा कंस्ट्रक्शन केमिकल यूज करना चाहिए। और ऑलरेडी हमारी या तो स्लैब वगैरह खराब हो चुकी होती है, तो हमारे मन में एक और कौतूहल रहता है कि हमको फिर से स्लैब कास्ट करनी होगी और उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा, फिर कौन सा मटेरियल वगैरह अप्रूव करें। तो एक अच्छा प्रयास है कि लोगों में जन चेतना का, पीपल विल वेल अवेयर अबाउट व्हाट द कंस्ट्रक्शन केमिकल दे हैव टू यूज, what are the waterproofing techniques, chemicals available in the market, and what are best feasible in our best prices. तो ये एक अच्छा प्रयास है। दूसरा, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस के लिए हमारे कई जो छात्र शोध करते हैं, रिसर्च वर्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनका मेन मकसद रहता है कि किस तरीके से भविष्य में डेड वेट को कम किया जाए। जैसे कि आप लोग वेल अवेयर हैं, जो लोग इंजीनियरिंग परिपाटी से जुड़े हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर लाइन से है, उनके लिए कि हमारी अगर स्लैब वगैरह खराब हो जाती है तो हम फिर से स्लैब कास्ट करते हैं। तो ऑलरेडी आपके 4 इंच की स्लैब पर आप 1 इंच का कोवा करवाते हैं तो 5 इंच का हो जाता है, उसकी थिकनेस हो जाती है, तो आपका डेड वेट अननेसेसरी इंक्रीज होता है। तो आपकी स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कैसे हो, उस पर हमारी बात होती है। और हमारा प्रयास रहा है GSITS का पूरे विगत 6 दशकों से, और इस साल हम लोगों ने अपना NIRF का टॉप 250 रैंक्स में हम लोगों ने स्थान जो पाया है, तो वो सब इसी उससे है कि समाज में हमारा उद्देश्य है कि हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है। तो जो छात्र, जो युवा इंजीनियर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें इस बात का होना है कि हमें डिग्री ही नहीं, भविष्य को लेकर हमें ये भी बात रखनी है कि हमारी युवा सोच के साथ में हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारे क्लाइंट को हमें, या हमारे जो साथ में हमसे जो ग्रुप जुड़ा है, उसको किस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए कि जो केमिकल आज वो इस्तेमाल कर रहा है, भविष्य में उसको दूरगामी क्या परिणाम देगा, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो इस पर हमें थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करनी चाहिए। इस तरीके के सेमिनार्स वगैरह का मूल मकसद हमें जो रखना है, ज्ञान अर्जन करना, और उसके साथ में हम उसका प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे कि अगर कोई चीज प्रयोग की दृष्टि से अच्छी है तो हम उसको आगे के समय में और अच्छी तरीके से और बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट कर पाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसके अंतर्गत हम लोग ले जा पाए। और इसी के साथ में मैं आज के स्पीकर और रिजवान सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक वगैरह लें। जी, आदरणीय रिजवान सर। Thank you so much, Mr. Vivek Tiwari. Thank you so much. Now, I would like to introduce today's speaker, Mohammad Rizwan Siddiqui, Business Development Manager, Bulwark Conchem. He is having 10 years of experience into construction chemicals, FMCG, etc. He has delivered various lectures, provided training on use of construction and waterproofing chemicals at Indian Building Congress, CPWD, IRCON International, PWD, Indian Railways, NTPC, and many government bodies. Now, I would like to welcome him. Please, Rizwan, sir, continue. Good evening, everyone. As you know, we are starting this session, and you have introduced with everybody. So, without taking much more time, I will start discussing the concepts, right? And before that, I would like to thank the professor and the faculty over there who have taken this step and given a chance to Bulwark Conchem to showcase their ideas about construction chemicals. Me personally always wants to deliver what I'm having related to my expertise and experience. So I am starting this session. Basically, it's a knowledge knowledge session on principle and use of construction chemicals and waterproofing chemicals. Okay, so I will cover up these things. Just give me a second. So if we talk about the entire universe, I would like to bring these 5 elements of life. Right? Everybody knows about it. Earth, ether, fire, air, water. So since beginning, men, एक आदमी, एक इंसान, एशियन जमाने के हिसाब से भी, they are looking for shelter, basics के हिसाब से. So
वो टेक्निक में उस जमाने में शुरुआत से मिट्टी का या फिर लाइम का गादा बनाकर केव्स में रहता था, उससे उसे कवर कर लेता था. They are always finding ways to construct a better residence, what we call residence home for better living. एक शेल्टर वो ढूंढ रहा है और वो शेल्टर बना रहा है शुरुआत से. उस शेल्टर बनाने में वाटर इज अ सेवियर. वाटर पाइथन अगर आप बोले, मतलब पोजाइडियन बोले अगर, या फिर आप ग्रीक गॉड्स की बात करें, तो वाटर जो है भगवान भी है और वाटर जो है एक ग्रेट डिस्ट्रॉयर भी है. At times you have noticed due to flood, right, and due to natural calamities, पानी डिस्ट्रॉयर भी साबित हुआ है. अभी इसी चीज को लेकर we will try to inculcate with everybody that how with the use of construction chemicals, with the use of right techniques, what are the do's and don'ts by which a civil engineer and architect, both the persons, any person, even the contractor at site, they can take care chota chota baatein, they can understand and they can implement it. At times there is a situation wherein architect एक डिजाइन बनाता है और इंजीनियर उसको एग्जीक्यूट करता है, तो फेलियर्स हो जाते हैं कई बार साइट्स पे. स्ट्रक्चरल डिजाइन ठीक बनाया था लेकिन साइट पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो आर्किटेक्चर वर्सेस इंजीनियरिंग हो जाता है. तो हमारी कोशिश, वी वुड लाइक टू ब्रिज दैट गैप, और उन दोनों के बीच में हम एक जो बैरियर है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और एक बीच में चैनल बनने की कोशिश कर रहे हैं. और शुरुआत से ही इस तरीके से कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का रोल रहा है कि जो डिजाइन बनाया गया है उस डिजाइन को कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के हिसाब से वायबिलिटी बनाई जाए. सो in my today's session, I would like to cover up these 7 unforgettable principles of waterproofing. So whenever we are discussing about construction जो होती है वो कंक्रीट की होती है. I believe कंक्रीट, प्लास्टर, स्ट्रीट एंड मॉर्टर मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आप सबके साथ में. You guys all know कैसे बनता है, कैसे नहीं, मतलब उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. I will quickly cover up these 7 principles and I will explain them accordingly, right? So the first and foremost principle is concrete RCC. Make a good quality concrete and waterproof concrete. This is the first principle. The second principle is talking about the plaster, renderings, mortar, screed. By use of suitable chemicals, you can make a good quality plaster, mortar, screed. So the second principle is talking about the plaster aspect. वो सबके घर में होता है. जो कंक्रीट भी नहीं कराता वो प्लास्टर, रेंडरिंग्स और मोर्टर का काम तो करता ही है. रिपेयरिंग भी होती है तो मोर्टर तो बनता ही है. अब तीसरा एस्पेक्ट आता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहा है, कंक्रीट पोरस मटेरियल रहता है, सो देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सुटेबल वाटरप्रूफिंग. सो वी एडवाइज चूजिंग द राइट प्रोडक्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ द पॉजिटिव साइड बैरियर. ठीक है ना, जहां आपकी वाटरप्रूफिंग है, इस पॉइंट को भी मैं कवर अप करूंगा. द फोर्थ पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ द जॉइंट्स. बड़ा कीमती है. जॉइंट्स की वजह से भविष्य में लीकेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है. सो द राइट डिजाइन एंड फिलिंग ऑफ जॉइंट्स बाय सुटेबल जॉइंट सीलेंट्स. इसके बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है. फिफ्थ प्रिंसिपल बात करता है कोल्ड जॉइंट्स की. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन कोल्ड जॉइंट्स का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए. अब ये होगा कोल्ड जॉइंट्स. अब एक नया एस्पेक्ट है, व्हेन वी डिस्कस अबाउट दी जॉइंट पार्ट, हर जगह टाइल लगते हैं, टाइल जॉइंट्स की भी बात करते हैं हम, राइट. उनका क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए. अब सातवां पॉइंट है अबाउट रिपेयर इन हनीकॉम्स. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या प्रॉब्लम आती है और कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी क्या क्या रिपेयरिंग मेथड्स हम अपना सकते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन. Even we go for rehabilitation and repair, right? So I believe somebody is saving this video, right? So I will take up you all to my first principle, which is talking about taking care of the concrete.
RCC, right? Concrete basically is a composite material composed of basically ingredients रहते हैं water, sand, cement, ठीक है, aggregates बोले, fine aggregates से बोले या coarser aggregates बोले. अब जो कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर इनहेरेंट डेफिशिएंसी होती है कि अगर उसके अंदर अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन एरर्स हो गए, दीज आर सर्टेन कंस्ट्रक्शन एरर्स लाइक स्केलिंग हो गई, क्रैक्स आ गए, फ्लोरेसेंस हो गया, मतलब इरोजन हो गया, स्पेलिंग हो गई, एंड इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग. मतलब कंक्रीट को लेकर एक आर्किटेक्चर का जो थॉट प्रोसेस है एंड एक इंजीनियर का जो थॉट प्रोसेस है, क्वालिटी कंट्रोल वाले भी इस चीज को मॉनिटर करते हैं. हर प्रोजेक्ट में क्वालिटी कंट्रोल पीपल आर देयर. इवन इन कॉलेजेस देयर इज अ डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस. सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस कंक्रीट पार्ट, राइट, वी हैव टू टेक केयर कि जो सीमेंट के साथ जो हाइड्रेशन करने के लिए पानी मिलाया जाता है, वी हैव टू कंट्रोल दैट पार्ट. मैसर्स और लेबर्स क्या करते हैं, वो ज्यादा पानी मिला देते हैं टू मेक इट मोर वर्केबल, राइट. So in order to make a good quality of concrete, there is a requirement of and importance of using a suitable admixture, एक additive, which complies to standard. मैं standards की भी बात करूंगा थोड़ा थोड़ा. मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन स्टैंडर्ड्स पे मैं आप लोगों को लेकर जाऊं, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं और जिसको पढ़ने से आपको थोड़ा रिलेवेंस रहेगा उस चीज में. So use of admixture and additives in concrete. So the codes to remember, you can also note down these codes, right? As per Indian Standard 9103, ASTM C494, British Standard EN 934, MOT बोलते हैं Ministry of Road Transport Highways का clause number 1012 and 602.2.3 Indian Road Congress का basically special procedures के अंदर 2009 clause 8.7 Indian Road Congress के दूसरे भी clause हैं. और IS 456 को भी आप पढ़ते हैं गुड क्वालिटी कंक्रीट बनाने के लिए. तो जब भी आप कोई कंक्रीट बना रहे हैं, चाहे वो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंक्रीट को आपको ले जाने में, फॉर एग्जांपल आपकी साइट है ए जगह पर, आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर लेकर जाना है, तो आपको सुटेबल जो भी कंस्ट्रक्शन केमिकल एडमिक्सचर यूज करना है, उसके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं जिससे आप उसका वाटर रिटेन कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी रिटेन कर सकें, वर्केबिलिटी रहे उसके अंदर. सो केमिकल एडमिक्सचर्स टू बी एडेड, ठीक है ना, दे एनहांस द कंक्रीट प्रॉपर्टीज इन फ्रेश और हार्डेंड स्टेज. सो concrete admixtures are also known as super plasticizers, basically which one when added to concrete either imparts required workability, जो आपको desired workability चाहिए, without the addition of extra water, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बिला concrete. जैसे कि आप अगर बात करें सेल्फ कॉन्क्रीट कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की, उस तरीके की भी कंक्रीट के लिए सुटेबल डिजाइन रहते हैं. जैसे कि कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ हाई रेंज ऑफ एडमिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए 3 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स है, आपको प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करना है. इसमें इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपको एडमिक्सचर की एक एडिशनल कॉस्ट लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर आपको एक प्रोजेक्ट 9 महीने में कंप्लीट करना है, वो कंक्रीट को सूखने में टाइम लगता है. अगर आप सोचिए कि आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाए, 7 दिन में मिल जाए वो डिजाइन मिक्स से, तो आप कंस्ट्रक्शन स्टेज को आगे ले जा सकते हैं थोड़ा जल्दी, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आप फिनिशिंग स्टेज की तरफ बढ़ सकते हैं. सो दिस इज वन पार्ट कि भाई यूज ऑफ एडमिक्सचर करना चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग एनी टाइप ऑफ कंक्रीट. दूसरा एस्पेक्ट होता है व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ कंक्रीट पैरेलली, यू कैन आल्सो यूज इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड. Basically, it's a dormant filler which fills up the pores and reduce the permeability of concrete. ठीक है ना, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं that can be done on, मतलब आप अपनी लैब में कर सकते हैं अगर आपके पास इन हाउस लैब है. At the very same time, there are a lot of third party labs which do this. जैसे कि अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं इसको, और साथ ही साथ साइट पे कई बार लोग करते भी हैं. यूजुअली कोई भी एडमिक्सचर के मिलाने से उसका इस्तेमाल करने के लिए वर्केबिलिटी देखी जाती है, और देखा जाता है कि साइट पर
उसके यूज करने से डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। ये इसका रोल रहता है, मैसिवली यूज होता है, आप सब लोग जानते हैं इस बारे में। डूज एंड डोंट्स व्हाइल यूजिंग एडमिक्सचर, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर और एडिटिव। फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस, आप जो लिखा है उसको फॉलो कर लें, ठीक है ना। कंक्रीट सुपर प्लास्टर टू बी यूज्ड एज पर रिकमेंडेड डोजेज ओनली, जिस डोजेज में लिखा है या फिर आपने ट्रायल करा है आप उसी के हिसाब से उसको यूज करें। इन केस ऑफ लोअर डोजेज, कई बार क्या होता है आपने डोजेज डिजाइन करी, रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी विल नॉट बी अचीव्ड। कंक्रीट सुपर प्लास्टिसाइजर शुड नॉट बी एडेड इन ड्राई सीमेंट। अब आपको पता ही नहीं है, इवन आप देखिए सीमेंट की बोरी में कभी ये लिखा नहीं देखा हुआ आपने कि उसमें पानी मिलाना है। आप लोग अग्री करेंगे इस बारे में, लेकिन उसमें सीमेंट की बोरी में पानी मिलाया जाता है सीमेंट बैग्स में, ठीक है ना। तो अगर जो आप मिक्सिंग डिजाइन बना रहे हैं तो उसको स्लाइटली थोड़ा ज्यादा मिक्स करिए और उसको टाइम दीजिए। वर्केबल दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको पता चल जाएगा, यू कैन मेजर इट, ठीक है ना, आप उसको स्लम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट जो सुपर प्लास्टिसाइजर है उनको भी ध्यान से रखिए, ऐसी जगह रखिए जहां पर वो उसमें अडल्ट्रेशन ना हो जाए, उसमें ऑयल ना मिल जाए। कई बार वो ऑयल के बैग ऑयल के ड्रम्स के साथ रखे जाते हैं, ठीक है ना। ट्रायल करने का एक रोल ये रहता है कि आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको अचीव होते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप सैंड चेंज कर देते हो तो मिक्स डिजाइन अगेन चेंज हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको दोबारा ट्रायल करना पड़ता है और इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी सो दैट यू कैन असर्टेन। उसको चेक करने के लिए आपके पास 6 क्यूब्स रहते हैं, 3 नॉर्मली क्यूब्स होते हैं कंट्रोल मिक्स के, 3 आपके एडमिक्सचर वाले क्यूब्स होते हैं। उनको आप सुटेबल मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करिए और उसको टेस्ट करने के बाद में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं उसकी, ठीक है। आपका वाटर का कंजम्पशन भी कम होगा उसके अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द एडमिक्सचर। जैसे कि आपको अच्छा क्वालिटी कंक्रीट बनाना है, एक रोड बन रहा है तो उसमें एक सुटेबल सुपर प्लास्टिसाइजर आप मिक्स कर सकते हैं जो एक सुटेबल इंडियन स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, ठीक है। आप उस तरीके से एक सुटेबल कंक्रीट को डिजाइन कर सकते हैं जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले, आपकी वर्केबिलिटी रहेगी, वाटर रिटेंशन रहेगी। एडमिक्सचर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो कि ASTM C494 को अगर आप पढ़े तो आपको लगभग 6 से 8 कैटेगरीज मिल जाएंगी। उसके बाद भी ये कोड आगे इवॉल्व हो रहा है और कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। तो एडमिक्सचर को मिलाने के फायदे होते हैं, वर्केबिलिटी बढ़ाता है, अर्ली एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है क्योंकि पानी आप कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिक्सचर डायरेक्टली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, वो सीमेंट टू वाटर रेशियो कंट्रोल करता है। reduces the permeability of concrete, reduces drying, shrinkage, cracks, bleeding and segregation। देखिए जो भी आपने सीमेंट यूज करी है उसके हिसाब से आपने ट्रायल करके एक डिजाइन सेट करा, 28 दिन की टेस्टिंग करी, आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल गए तो यू कैन गो अहेड। अगर नहीं मिलते तो यू कैन डू रीट्रायल। उसके हिसाब से डोजेज आप एडजस्ट कर सकते हैं, वेदरिंग के हिसाब से डोजेज प्लस माइनस भी होती है, आपको वेदर की कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। Now I am moving to the second principle. So I was talking about concrete. I believe वो काफी हद तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लास्टर रेंडरिंग, प्लास्टर में होता है सीमेंट सैंड, पानी मिलाया जाता है। रेंडरिंग्स बनाते हैं आप, सीमेंट सैंड प्लास्टर, सीमेंट सैंड भी हो सकता है उसमें, सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स भी हो सकता है, मोटर के अंदर आप सीमेंट सैंड भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीड में थोड़े चिप्स छोटे हो जाएंगे, आपको लेवलिंग के लिए यूज करना है तो। अब इसमें एक कोड जो रिमेंबर करेंगे आप, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड यूज करेंगे जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 2645 के हिसाब से होता है। मोटर कहीं भी न्यू कंस्ट्रक्शन, पुरानी कंस्ट्रक्शन में यूज करा जाता है। अब इसमें जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, राइट, जो भी आप डिजायरस रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें वाटर प्रूफिंग प्लास्टर, मोटर, स्क्रीड बनाने के लिए आप जो है इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को कंप्लाई करने वाले प्रोडक्ट्स को एक सुटेबल डोजेज के अंदर मिक्स कर सकते हैं। उनको मिक्स करने से आपको ये एडवांटेज होगी, जो आपका रिबाउंड लॉस होता है, जैसे अगर प्लास्टर भी दीवार पे आप स्टिक करते हैं, मतलब रिबाउंड लॉस जो होता है जिसमें आपने प्लास्टर को हिट करा और बहुत सारा प्लास्टर गिर जाता है नीचे की तरफ, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो उसमें आप सुटेबल इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड किसी भी, जिस तरीके से आपको
मतलब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मिक्स कर सकते हैं. सो वन ऑफ दीज इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड्स इज बुलवर्किन. बुलवर्किन इज लाइक आप मैशनरी वर्क कर रहे हैं या छोटा मोटा रिपेयर का काम कर रहे हैं, बेबी मिक्सचर है आपके पास में, उसमें आप इसको अगर आप जैसे वाटरप्रूफिंग कंक्रीट बनाना चाहते हैं या मोटर बनाना चाहते हैं, उसमें एक डिजायर्ड रेशियो में जो कि मेंशन्ड है उसमें मिक्स करिए और आप यूज कर सकते हैं. और आप जैसे आपने उसको मिक्स करा, इसमें पॉलीमोक्रिट भी यूज कर सकते हैं. पॉलीमोक्रिट इज अ मल्टीपर्पज पॉलीमर which is used for any or every type of construction. अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बुलवर्क इन नहीं मिलता है, आप पॉलीमोक्रिट भी परचेज कर सकते हैं. अब तीसरे सेगमेंट की बात करूंगा. देखिए, प्लास्टर और कंक्रीट का और स्क्रिट का आप लोगों ने ध्यान रख लिया. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि वाटरप्रूफिंग करने के तरीके. सबसे पहले तो वाटरप्रूफिंग क्या है, वो एक कोटिंग है. इसमें दो तरीके होते हैं. देखिए, एक तो आपके पास रेडी मेड मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स को आप लेकर आते हैं और घर में पेस्ट कर देते हैं, उससे आपकी वाटरप्रूफिंग हो जाती है. दूसरा होता है लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स. वो मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, उनको आप उनके जो बॉक्सेस हैं, उनकी जो आपकी फॉर एग्जांपल आप कहें कि बकेट्स हैं, उन बकेट्स में से आप निकालिए, सुटेबल रिकमेंडेशंस फॉलो करिए और उनकी एप्लीकेशन कर दीजिए. अब उसमें तरीका क्या रहता है आइडेंटिफाई करने का कि कौन से एरियाज जो है वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए. देखिए, वाटरप्रूफिंग वहां करनी चाहिए जो पॉजिटिव एरिया जो पानी को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है. अब पॉजिटिव एरिया कौन सा है, जहाँ पॉजिटिव प्रेशर आएगा पानी का. अगर स्विमिंग पूल की बात करें तो वो है स्विमिंग पूल की अंदर, जहां आप पानी स्टोर करेंगे वहां से पानी निकल जाता है. बार बार बंदा बोलता है मैं स्विमिंग पूल में पानी भरता हूँ और पानी निकल गया. स्विमिंग पूल में पानी भरा, फिर वो खाली हो गया, ये मेरे लिए एक लॉस हो रहा है. तो हो सकता है उसने सुटेबल वाटरप्रूफिंग नहीं करी थी. इतने सारे टाइल के अंदर जॉइंट थे, कहीं से भी लीक कर गया, मेरी लाइटिंग जो है डैमेज हो गई, मेरी लाइट्स लगी हुई थी स्विमिंग पूल में, उसकी वजह से करंट आ गया, कुछ अनहोनी भी हो सकती है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बात करें टेरेस की, अगर आप रूफ की बात करें या संकन एरियाज की बात करें, संकन एरियाज में इनसाइड है, आपको पानी वहां भर सकता है कभी भी. आपका ड्रेनेज जो मतलब पाइप है वो चौक हो जाता है, तो वहां आपको सुटेबल वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए. दूसरा, अगर आप बात करें बालकनीज की, वहां भी आपको उसके आरसीसी मदर स्लैब के ऊपर वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए. अगर आप रूफ की बात करें तो रूफ में ऊपर की तरफ वाटरप्रूफिंग करनी पड़ेगी, जहां पानी अट्रैक्ट करेगा. बाहर की वॉल्स पे आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं, चाहे वो ब्रिक वॉल हो, चाहे वो कंक्रीट वॉल हो. आपको सुटेबल मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, विच वी कैन प्रोवाइड, और इट विल बी इजियर फॉर यू बिफोर प्लास्टर. आप ये काम कर दें ताकि आपको लॉन्गर कोर्स में परेशानी ना हो. तो आई बिलीव पॉजिटिव सरफेस समहाउ इज वेरी मच क्लियर, एंड सर्टेन कोड्स विच यू कैन रिमेंबर कि भाई जो भी मटेरियल मैं परचेज कर रहा हूँ, आप उसकी थोड़ी सी टेक्निकली चेक कर लें या देख लें कि भाई उसकी सॉलिड कंटेंट्स कितने, आपको उसको मिक्स कैसे करना है, उसकी डिजायरेबिलिटी कैसे अचीव करनी है, और मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करके ये भी जान लें कि उसको लगाना कैसे. आपको हो सकता है ना मटेरियल ठीक हो, एप्लीकेशन नहीं हो पाई, कई बार ऐसा भी हो सकता है. तो अगर सुटेबल एप्लीकेशन होती है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी अ कंप्लीट सॉल्यूशन. सो सम ऑफ द वाटर बैरियर्स लाइक वो प्री फॉर्म्ड मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, वो लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, विच कैन बी यूज्ड, ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, उसकी हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम. अगर कहीं रिक्वायरमेंट रहती है, वी कैन कम. कोविड की वजह से वी आर नॉट ट्रेवलिंग दैट मच, लेकिन वी कैन कम एंड वी कैन डू अ व्हाट वी कॉल इट ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट सेशन कॉलेज और अ प्लेस विच रिक्वायर दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से एप्लीकेशन करनी. So one of the product for waterproofing we have is Bulwark Polymocrete. So it can be used on water tank, छोटे water tanks हैं, roofs हैं, kitchen है, inner wall है, exterior wall है, swimming pool है, terrazzo है, कोई भी flooring हो गई उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, polymer concrete बना सकते हैं, basement की waterproofing के लिए यूज कर सकते हैं. So this is something which you can always use
एज अ इंस्टेंट सॉल्यूशन। व्हाइट कलर का लिक्विड सीमेंट के अंदर मिलाना है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका यूज करिए, इसका इस्तेमाल करिए। आपकी क्वालिटी एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। आपके पिलर्स अगर आप कास्ट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी सेट करना है, पॉलीमर से उसको मॉडिफाई करना है, आप कर सकते हैं। अगर आप उसमें एडमिक्स यूज करते हैं, ऑलवेज बेटर, आपको अर्ली स्ट्रेंथ भी मिलेगी, सरफेस फिनिश भी अच्छा हो जाएगा अगर आप कंक्रीट में एडमिक्स यूज करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज बेसिकली फॉर रूफ वाटरप्रूफिंग, विच इज बेसिकली अ फ्लेक्सिबल मटेरियल। अब छतों की अगर आप बात करें, वहाँ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, कंटिन्यूसली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता देर आर चांसेस कि अर्थक्वेक भी आता है कई जगह पर। उससे क्या होता है कि बिल्डिंग कंक्रीट इज अ रिजिड मटेरियल, क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। सो इफ देर इज अ सुटेबल वाटर प्रूफिंग विच इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स, इट कैन एब्जॉर्ब द क्रैक्स। आपके जो क्रैक्स है ना, उन क्रैक्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी जो वाटर प्रूफिंग सिस्टम है वो फेलियर नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम डिटेल स्पेसिफिकेशंस भी बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, एज पर द सुटेबिलिटी एंड बजट। आपका क्या बजट है, क्या स्कोप ऑफ वर्क है और क्या सुटेबल मेथड रहेगा। आर्कियोलॉजी रिपेलेंट, बहुत सारे आर्किटेक्चर जो स्टूडेंट्स हैं, आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स, उनका रहता है कि दे आर लुकिंग फॉर ऐसा एरिया जहां पर वो सिर्फ ब्रिक वॉल बनाकर छोड़ दें और उसमें कोई अलगी, फंगस या बैक्टीरिया न लगे और एस्थेटिकल लुक्स में वो वैसा ही लगे। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं और ऐसा होता है कई तरह के स्टोन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पोरस होते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी उसमें काई जम जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सिलिकॉन बेस्ड वाटर रिपेलेंट यूज करने चाहिए। उनसे आपको उस जगहों पे वाटर रिपेलेंसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पानी से चेक भी कर सकते हैं। आपने इसका वाटर रिपेलेंट साफ करके वहां पर लगाया और उस पर अगर आप पानी मारकर देखेंगे तो वहां पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। और लाल कलर का जो स्टोन होता है कोटा टाइप का, उसमें भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत तरह के स्टोन्स जहां पर पोरस मटेरियल है वहां इसकी एप्लीकेशन करी जा सकती है। इवन कंक्रीट पे भी इसकी एप्लीकेशन करी जा सकती है अगर आपको उसे एज इट इज छोड़ना है। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स बाय विच आप जो है विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पार्ट्स, आपको उसमें पेंट पुट्टी नहीं करनी है। वाटर रिपेलेंट अगर आपको कोई जगह बनानी है जहां पर आपको कोई फर्दर प्रिपरेशन नहीं करनी, वहां आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सरफेस शुड बी गुड, सरफेस ठीक होना चाहिए। आप ब्रिक वॉल पे भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक वॉल के जो जॉइंट्स है उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका ट्रीटमेंट आप पॉलीमर मोर्टार से कर सकते हैं। अब दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, these days people are massively using it, बुलवर्क क्रिस्टल पाउडर। सो these days जहां पॉजिटिव वाटर प्रूफिंग नहीं हो पाती है, वहां नेगेटिव साइड से कंक्रीट पे उसको मोर पोरस, मोर डेंस बनाने के लिए क्रिस्टलाइन एडमिक्सचर यूज करे जाते हैं। उन एडमिक्सचर्स की और उस कोटिंग की ये एडवांटेज रहती है कि इट इज वंस डन, इट गोज इनसाइड द कंक्रीट। अगर कंक्रीट की लेयर निकाल दी आपने तो उस जगह पर जो है वो फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट करना है फ्रॉम द इनसाइड, बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम होती है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड, बट दिस रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन एंड मेथोडोलॉजी। क्योंकि इसकी एप्लीकेशन के अंदर आप एक बार इसकी एप्लीकेशन करेंगे और एक बार अगर ये ढंग से एप्लीकेशन होगा, इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर वहां जॉइंट्स हैं या क्रैक्स हैं, उनका ट्रीटमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना, वी ग्रुप करके या यू ग्रुप करके। अब मैं 3 प्रिंसिपल्स मैंने डिस्कस करे, डेफिनेटली आपको याद हो गया कि कंक्रीट का ध्यान रखना है एडमिक्सचर से, प्लास्टर का ध्यान रखना है इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से, प्लास्टर स्क्रीड। तीसरा बताया है कि सुटेबल वाटर प्रूफिंग यूज करनी है और कहाँ यूज करनी है, दैट वी विल डिस्कस इन द लॉन्गर कोर्स, मतलब एक नेक्स्ट सेशन भी करेंगे, वहां पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। द 4th पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपेंशन जॉइंट्स। अब हम आर्किटेक्ट लोग जो हैं, जो डिजाइन करते हैं, उनको एक चीज ध्यान रखनी है, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। तो उनको ये ध्यान रखना है कि सुटेबल एक्सपेंशन जॉइंट्स देने पड़ेंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर में, सो दैट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से वहां पर क्रैक्स डेवलप ना हो। उसके लिए बुलवर्क सील पीएस, मतलब पॉलीसल्फाइड बेस्ड या पॉलीयूरेथेन बेस्ड आप सीलेंट यूज कर सकते हैं। These sealants are used to
बेसिकली फॉर फिलिंग दैट गैप्स। नॉर्मली आपको 8 mm या उससे अबव मतलब 40 mm तक के गैप्स फिलअप करने के लिए पॉलीसल्फाइड सीलेंट यूज कर सकते हैं। और इसमें आपका एडवांटेज ये होता है कि सर्दी और गर्मी होने से मतलब with 1% change of weather there is a change in the this substrate, basically concrete। हर substrate का there is a coefficient of thermal expansion, ठीक है ना, वो change होता है with the change of temperature। तो उसको मेंटेन रखने के लिए स्ट्रक्चर ब्रीथ कर सके, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। और इस तरीके से हमें फैक्ट्रीज के अंदर भी जहाँ वाइब्रेशंस होती हैं या वह पार्किंग एरिया हम डिजाइन करते हैं वहां पर हमको एक्सपेंशन जॉइंट्स करने चाहिए ताकि एक्सपेंशन जॉइंट्स का ध्यान रखा जा सके। ये दीज आर द सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो इस तरीके के प्रोडक्ट को करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है ना। इसको गन में फिल करके आप फिल कर सकते हैं, इसे इन्होंने नॉर्मली एक छोटे से एपरेटस में यूज कर रहे हैं, लेकिन देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट। अब 5वां प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स एंड कोल्ड जॉइंट्स। अब लॉट ऑफ देखिए आर्किटेक्ट ने एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, अब साइट पे इंजीनियर्स दे आर एग्जीक्यूटिंग। हो सकता है कि उस टाइम पर उनके पास कंक्रीट नहीं आ पाया, जो उनके पास मिलर आना था वो नहीं आ पाया, या उनकी कंस्ट्रक्शन किसी वजह से रुक गई, ठीक है। तो पुरानी कंस्ट्रक्शन और नई कंस्ट्रक्शन के बीच में जो अगर गैप आ गया तो वहां आपसे कोल्ड जॉइंट बन जाता है। वहां पर साइट पर जो सुपरवाइजर्स रहते हैं या क्वालिटी से रिलेटेड ऑडिटर्स रहते हैं, दे मॉनिटर इट कि भाई वहां पर एक जॉइंट आ गया है। तो अगर प्री कंस्ट्रक्शन में आपको पता चल जाता है पुराना एक मंजिल बनाया था दूसरी मंजिल बनानी है, तो उन दोनों के बीच का जो जॉइंट है उसको फिल करने के लिए सुटेबल इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस। दूसरा ये है कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब प्री कंस्ट्रक्शन में यूज ऑफ वाटर स्टॉप इज ऑल्सो क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट। उसकी भी एक मेथोडोलॉजी है, उसको लगाने का तरीका है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब आपको पता चल गया आपकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और आपने उसमें बॉन्डिंग एजेंट नहीं लगा पाए, तो उस सिचुएशन में यू कैन डू दैट, यू कैन डू इंजेक्शन ग्राउटिंग। वी ग्रूविंग करके वहां पर नोजल फिट्स करिए और उसमें इंजेक्शन ग्राउटिंग करिए एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, और वहां के जो गैप्स थे उसको फिल कर दीजिए। वो सीमेंटिशियस भी हो सकती है, वो इपॉक्सी बेस्ड भी हो सकती है। जब रिपेयर होती है तो पॉलीयूरेथेन बेस्ड भी हो जाती है, एक्वा रिएक्टिव मटेरियल भी हो जाता है, जिससे कि आपको उन जॉइंट्स को खत्म करना है, कोल्ड जॉइंट्स को भविष्य में वो परेशान कर सकते हैं, वहां से पानी आ सकता है। So treatment of construction joints is very very critical and important. This is a very important principle जिसके वजह से आपके बहुत सारे घर के एरियाज में कोई से भी प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमें परेशान करती हैं। सो इंजेक्शन ग्राउटिंग का तरीका रहता है, इंजेक्शन के लिए आपने कोई भी एक पर्टिकुलर नोजल्स लगाए सुटेबल, उसके अंदर आपको सीमेंट से इंजेक्शन कर सकते हैं। और हमारा एक प्रोडक्ट आता है बुलवर्क एडमिक्स, उसको एक पर्टिकुलर डोजेज में मिलाना होता है और उसके हिसाब से उसकी इंजेक्शन ग्राउटिंग से इंजेक्शन करना होता है। मतलब मशीन होती है उसकी, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसको आप इंजेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा प्रेशर से करेंगे तो कंक्रीट डिटोरेट हो जाएगा। अब आपकी बहुत छोटी और पतली वॉल है, वहां आप नहीं कर सकते, वहां सिर्फ आप वी ग्रूविंग करके उसकी रिपेयर कर सकते हैं। वी ग्रूव या यू ग्रूव बनाकर उसकी पैचिंग एंड रिपेयरिंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थिकनेस ज्यादा है, मतलब 4 इंच की कम से कम आपकी है स्लैब, ठीक है, अगर वहां गैप है या फिर आपकी वॉल है, तो वहां पर आपको करना चाहिए। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल लाइक दैट। कंडीशंस डिटरमाइन करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 6th प्रिंसिपल है, बहुत आपको पिक्चर से ही नजर आ रहा होगा डेफिनेटली, कि ये जो कुछ पतले पतले से जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में फिलिंग करी जाए। 90% ऑफ केसेस, चाहे बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे आप फैक्ट्रीज की बात करें, जहां टाइलिंग हुई हुई होती है, वहां पर टाइल एक जरिया बन जाते हैं जिससे कि पानी का रिसाव होता है। उस पानी के रिसाव को रोकने के लिए आप इपॉक्सी बेस्ड या सीमेंटिशियस बेस्ड टाइल ग्राउट यूज करें। कलर्स में भी आते हैं, डेकोरेशन भी बढ़ेगी उसमें आपकी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब वो टाइल ग्राउट जो है आपका, जो आप चूज करेंगे उससे पहले आपको टाइल के बीच में आप टाइल के जॉइंट में गैप रखना है, ठीक है। टाइल के जॉइंट में गैप रखना है, वो गैप इतना होना चाहिए, मिनिमम 3 से 4 mm का होना चाहिए, जब भी मटेरियल उसके अंदर जा पाएगा। आपको ऐसी सिमेट्री रखनी है, ऐसा डिजाइन रखना है। पता चला अगर आपने टाइल का जॉइंट ही नहीं रखा, अच्छा तो लगेगा देखने में, लेकिन बाद में आपको बहुत परेशान करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच नीड टू बी टेकन केयर। नाउ आई एम मूविंग टू द 7th प्रिंसिपल which is everyday principle. So repair honeycombs. First of all, whenever you are going for any type of repairs, it is important to ascertain वहाँ कौन सा मटेरियल लग सकता है और क्या प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम को समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपने सही मेथड चूज करा है और सही प्रोडक्ट चूज मिला है, आपको डिजायरेबल रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको पैच जो आपने डिजाइन करा है उसको आप चौक से मार्क कर सकते हैं। एक बिल्डिंग, एक एरिया को अगर आप रिनोवेट करने जा रहे हैं या रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं, कई क्रैक्स आते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि कोई बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो गई है, वहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है, हो सकता है वहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करानी पड़े आपको। पता चला उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो गया स्ट्रक्चर का, तो उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं है, एनडीटी करा नहीं पा रहे हैं, तो आपको रिपेयर करने में भी आपको सुटेबल टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। तो पैच ज्योमेट्री, उस पैच को किस तरीके से ट्रीट करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सॉरी, आरसीसी की अगर आप बात करते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो रीइंफोर्समेंट को एक्सपोज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इट इज बेटर कि आप रीइंफोर्समेंट को ओपन करें, एक्सपोज करें, उसको देखें कि उसके अंदर डैमेज कितनी हुई है। अगर डैमेज ज्यादा नहीं है, डैमेज बहुत ज्यादा है, तो उसको रिप्लेस करिए, उसको वेल्ड कराइए। अगर डैमेज कम है तो आप उस पर रस्ट रिमूवल लगा के जिंक रिच प्राइमर लगा दीजिए ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। कोनों की, मतलब अगर आप देखेंगे तो कोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, ऐसा मटेरियल बनाइए जिसमें आप पॉलीमर मिक्स कर लीजिए या फिर उसमें नॉन श्रिंकिंग कैपेबिलिटीज हो, जिससे कि आपके कोने ना झड़े, ठीक है ना। क्लीनिंग रिइंफोर्समेंट स्टील इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसे ढंग से साफ नहीं करते, आप एसएस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने जैसे जो भी प्रोडक्ट यूज करा, आप उसकी एप्लीकेशन करने के लिए कंक्रीट में बॉन्डिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट को जोड़ें। आप चिकन वायर मैश यूज कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बनाने के लिए। आप फाइबर मैश यूज कर सकते हैं अगर आप सिर्फ उसके अंदर कोटिंग कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। आप उस रिपेयर को उस हिसाब से लेकर चलेंगे जो कि एवरीडे रिपेयर है। अब हो सकता है दीवार पे एक पतला सा क्रैक जा रहा हो, छोटा सा, हो सकता है कि वो आगे जाकर बढ़ जाए, तो उसको असेस करना सबसे इम्पोर्टेंट है एंड उसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट क्रैक, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज रिपेयर के अलावा, जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आजकल क्या है, पीवीसी पाइप्स यूज होते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो उन पीवीसी पाइप्स को लिए हम करते हैं बोर पैकिंग। बोर पैकिंग में ऑलवेज एडवाइजेबल ऐसा मटेरियल यूज करें जो पीवीसी पाइप में और कंक्रीट में फ्रेंडशिप कर सके, बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। सो दैट मटेरियल should be either epoxy or a suitable adhesive lining which can bring the bonding between the substrate, which is really important. आपके लॉन्गर कोर्स में टाइल फेलियर नहीं हुआ तो जॉइंट फेलियर हो जाएगा, जॉइंट फेलियर हो गया तो वहां का बॉन्ड अगर टूट गया तो आपका सेकंड फ्लोर वाला है वो फर्स्ट फ्लोर वाले को परेशान कर देगा, फर्स्ट फ्लोर वाला ग्राउंड फ्लोर को। दिस इज एन एडवाइस फॉर द बिल्डर सेगमेंट ऑल्सो, दिस इज एन एडवाइस फॉर द आर्किटेक्ट पीपल कि भाई वो सुटेबल उसमें इपॉक्सी लाइनिंग दे दें जिसमें वो माइक्रो कॉन्क्रीटिंग करवा के या फिर नॉन श्रिंक जो है मोर्टार उसको फिल करें, ताकि भविष्य में वो बोर पैकिंग से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जहां भी बोर पैकिंग होती है, चाहे छोटे पाइप्स हो या बड़े पाइप्स हो, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और इसमें फोकस रखिए, आपका बिल्डिंग डायनेमिक्स कभी फेल नहीं होगा। So you know about the company. Company is having technical collaboration with Silk Road Korea. This is all you guys know, and we do have a lot of clients here in India now. So I am moving again to the company part. I have completed the 7 principles in a very brief because it is always there is a time constant. कभी आप सब लोग बुलाओगे मेरे को वहाँ पर
एनपी तो मैं पूरा दिन दूंगा आपको और अच्छे से बताऊंगा उस बारे में, ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लाइव एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा कि उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। कंपनी के पास सर्टिफिकेशन हैं काफी सारे, ठीक है ना। एडमिक्सचर की सारी रेंज ऑफ केमिकल्स हम बनाते हैं, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है हम कर सकते हैं उसको फुलफिल, और हमारा नेटवर्क भी है उसमें। क्यूरिंग कंपाउंड भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, आप उस एरिया में प्रॉब्लम है, तो आप क्यूरिंग कंपाउंड की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि ASTM C309 के हिसाब से कंप्लायंस होता है। क्यूरिंग कंपाउंड भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको करने के तरीके हैं, इसको इस्तेमाल करना कैसे करना चाहिए। कंप्लीट डे की मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, ठीक है। टाइल एडिसिव की अगर बात करें, बेसिकली फॉर फिक्सिंग सिरेमिक टाइल्स, इसमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कितना बड़ा टाइल की एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको क्या थिकनेस चाहिए, आपकी वॉल की सिमेट्री क्या है। अगर आपकी वॉल की सिमेट्री सही नहीं है तो आपका मटेरियल ज्यादा यूज होगा, राइट। सो दिस नीड टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी और ध्यान रखना है उसका। अब अगर आप बात करें पार्किंग्स की, तो पार्किंग्स में आपको मतलब कार पार्किंग में यूजुअली ड्राइविंग होती है। इसका मोबाइल है ये, मेरी आवाज गूंज रही है दोबारा। सो whenever you are going for any type of flooring, previously जो है IPS flooring होती थी, इंडियन पेटिंग सिस्टम की, इंडियन पेटेंटेड सिस्टम IPS फ्लोरिंग। नाउ VDF फ्लोरिंग होती है यूजुअली वैक्यूम डीवाटरिंग VDF फ्लोरिंग, जिसे ट्रेमिक्स फ्लोरिंग भी बोलते हैं, जिसमें आपको पानी सक करना पड़ता है एक सर्टेन स्टेज में, और आपको केमिकल स्प्रिंकल करना पड़ता है उस पर, सो दैट वो केमिकल बेसिकली एक नॉन मेटालिक सरफेस हार्डनर होता है, जिससे कि आपका एब्रेशन बढ़ता है। Whenever you are going for any factory design, it's always advisable to go for a non-metallic type surface hardener. So that surface hardener is very important and crucial while designing Trimix flooring. उससे आपका एब्रेशन बढ़ेगा। पता चला कि आपकी फोर्कलिफ्ट आ गई, ट्रॉली आ गई, आपको बहुत दिक्कत और परेशानी हो सकती है और आपका डिजाइन फेलियर हो सकता है। आपकी उसमें कंक्रीट का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आपको कंक्रीट के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्प्रिंकलिंग और सुटेबल मतलब एब्रेशन क्रिएट करने वाले नॉन मेटालिक फ्लोरिंग कंपाउंड का यूज करना है। So these are certain products, we have already discussed these things. So अगर कहीं आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है, we can cover up, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है, ये 7 प्रिंसिपल्स याद रखिए अबाउट द कंपनी, जिसके साथ we do have a technical collaboration, we are doing one of the very complex advice. These are certain examples of bridges, ठीक है ना। इसमें we are supplying chemicals over there, ठीक है ना। वो सब चीजें रहती हैं सारा। इंडिया में हम काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं, राइट, दैट इज कंटिन्यूअस एंड दीज आर दी प्रोजेक्ट्स अबाउट इट। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू आवर MD, the university, the organization, and for giving me valuable time to showcase our thought process, our principles, our vision, right, and the entire team for making this event live, right, especially about the eminent professor and their team who has given us so much time to showcase our thought process about construction chemicals. I am very much thankful. I would like to give this to our business head, Mr. Vindish Pandita, who can like give a glance about Pan India Network. Thank you so much. Thank you once again. Thank you so much once again for sharing your valuable time with us. And as so, I am so much thankful to SRG, SRIPS, staff and host for given the opportunity to tell my students the products and the waterproofing. And
And as far as distribution, since the college is based out of MP, I just want to highlight one thing on that we have got a distribution setup across all MP main towns. We have a major distributor who is based out of Indore, CCL and CCL Corporation. We have three distributors across Jabalpur, High-Tech, Ranmai, and Basti and traders. And we have got Excuse me, sir. And we have got available engineers. So we have got a full set of products are available with all the distributors, and we have got a dedicated sales force team who is working across all towns, whether it's in Gwalior. We have got Sahani traders in Gwalior also. So every product related to Bulwark OneCam, any information, anything you want will be given at your doorsteps. So as earlier said, also we have a distribution setup pan India. So we will be sharing after the conclusion of the meeting. We will be sharing the details of our business partners who are based out of Indore, Jabalpur, Gwalior, Bhopal, other small towns also. We have got a dedicated team with the ASM, with the sales officer, to give you technical support, anything you require from our end. And we at head office, at Bulwark office, are already there to serve you out. My team is there to help you out in every way. So I will definitely request you to please explore the possibility of maximizing the construction for our specialized projects. And there will be an interactive session as per the project setup. So I'm handing over the phone to Ritika, and she's going to take it forward. Thank you once again so much for giving us the opportunity to be with you. Thank you so much. Thank you, Mr. Vindesh, sir. Thank you, everybody, for for your valuable time. Thank you so much for your participations. We will definitely connect much more such events in the coming days. It was very nice connecting with you all. Thank you again for giving your valuable time. Now, we would proceed towards the questions. Now, Mr. Rizwan would be there to assist you with the questions. Please, Mr. Rizwan, sir, proceed. Just give me a second. I would like to go to the presentation part. If anybody is having any what we call any questions, so we can like do it accordingly. So Mr. Vivek is there. Hello. Yes, sir. So if you guys have any questions, like, we are happy to help you, and we can serve. Even either after this event, you can mail these questions to us. We will one by one we can reply to this. Even if you have any problems, you can share the photograph. So somebody has written that please arrange one more session for same. We will definitely do. We are more than happy to do that. You can send us the details where you want. We will do it. We can do that. We do have a lot of distributors. So somebody has written, Danish Jahangir has written that, do you have distributors all over India, including J&K? See, we do have a distributor at Chandigarh. So we can cover it up. Like, we can send you the details from where you can purchase the material. And if you require any advice, you can send an email at info@bulwarkoncam.com. We will definitely like help you out with any sort of problem. Shashank Singh has written, I am having an underground room in my house and water seeps into it during rainy season from walls and floors and fill the room up to 5 feet. Any suggest how to stop it? I request you, Shashank, please send me an email with the photograph, what is the design, whether it's a concrete wall or a brick wall, what all remedies you have taken till date, and I will definitely get back to you because I can help you out. I also have a basement problem, right? I was having, right? And I am a second year of engineering, so could you please tell me which type of should I improve? That is totally up to you.
Yes, absolutely. Can you your products help me to get right from moisture from walls? Mr. Danish Jahanzir once again raises a question. So yes, there are suitable methodologies by which Hello. you can. Yes, hello. Is somebody is there? Yeah. Hello. Hello. Yes, sir. Mr. Rizwan, I am Bibi Satpathy calling from Bhubaneswar, Odisha from Build Care. Yes, Hello. sir. I'm here. Yes, sir. Yes, sir. Acha. You must be having the SBR product, styrene butadiene. Yes, sir. What is the percentage of, what is the solid content? Solid content. Yes. Yeah. We do have two products with us. One is 30% and one is 50%. Which one do you want? 50% will be much better. Absolutely. It will be a little costlier. Okay, no problem. No problem. Okay. And next point is, and we will yes, sir. You must be having waterproofing material 2-pack system A plus B, liquid and powder. Yes, sir, we do have. Yeah. What is the percentage of elongation? For small roofs, 60-70 we will manage, but for the bigger roofs, more than 20,000, 30,000 like this, the percentage of elongation plays a very important role. Absolutely, sir. I was talking about that only. What are the products you have? Sir, for that it is always advisable, and it's a factory, or it's what type of a structure it is, sir? Purpose like that only, factory buildings only, but this type of area you will get only in factories. Sir, it is always like better to go for a product which can absorb more shocks, like going for polyurethane based waterproofing at an affordable prices. Yes, it is always better to go for polyurethane based customized product. What you can do is you can customize this as per requirement. Abhi APP membrane sab log lagata hai. My question is budget also you have to say. Do you have any product which will give 200% elongation? Sir, we can give you a system which will solve your problem. See, we do have a product having 300% elongation. 300% elongation in terms of polyurethane, 500%. But if you talk about cementitious product, we have polymer. If you are talking as your good self is talking about polymer, we have a elongation of nearly 80 to 100%, not more than that as of now. But if you have a specific requirement, because our research and development is continuously evolving, and we are forcing ourselves to as per the requirements, we can do that. We can definitely do it that accordingly, and we can put up a sample to you, wherein you can also try, and our lab also can do testing on that. We can arrange and organize this. We was working on certain products which can be done and left afterwards without any protective plaster. Where is your production nearer to Bhubaneswar? Sir, as of now, to be very honest about this, we was planning for Siliguri, frankly speaking, to cater Northeast. But due to COVID, we are not able to expand our locations as of now. We do have our setup at Delhi and Mumbai. We do have two places wherein we are doing productions, and we will, with the coming months, we will definitely come up with something nearby to your place to cater the East market. Sir, if it is not Calcutta, otherwise it will be very difficult for us to lift the material. I know that. I know. Because the transportation charges will be high. I cannot compete in the market. Absolutely, Yes, absolutely. Adding on to this one, we have a manufacturing facility in Vapi and Badurgarh, and locally in Bhubaneswar you are talking about. The service of our products will be given to you then and there in Bhubaneswar only. We have our sales team and technical team working in that area for each region. And we can direct our representative to meet you and get in touch with you at near Bhubaneswar, any part of Odisha. From Calcutta, yeah, for full truck, 20 tons truck, 16 tons truck, we are paying only
130 paisa, 140 paisa per kg. No, not at all. At present, I think. I will tell, that is not called here. My point of training in between is that since we talk about the manufacturing facility, we have a facility across 2-3 factories, and as far as the distribution goes, you will be getting your voice. Sorry, sir, pardon. Yeah. Voice is not clear. Please repeat No, again. okay. I'm telling okay. you, we can direct a guy from our team who is based out of Bhubaneswar. He will come and meet you. Our products, Bulwark Conchem products, will be definitely serviced at your doorsteps, irrespective of where the factory is, because we will give a service level and a technical support that is there in Orissa only. So you don't have to worry about all. We will take the details from you and technical person and a sales. Yeah. Please. Sir, kindly hear me. Yeah, sure, please. Yeah. I am in this line since the last 30 years. Oh, that's I am good, 70 years. I am 70 years a young man. Oh, nice to hear that. Yeah. We have repaired nearly 36 bridges on National Highway. That's so nice of you. Thank you. Texlaf lifting, bearing replacement, epoxy grouting, spalling concrete repair. ये सब हम देख लिया है. But if the product is, if the transportation cost is high, we cannot place the order. That is very important. I have gone kindly hear me. I have gone through your product data sheet. No doubt, your products seems like very good money. It will give good result. In that, I don't have any doubt. But price ultimately, price plays a very important role. So, you are right. Pretty right. Yeah. If I'm paying 10,000, 20,000 more transportation charges, where I will stand. Sir, can I say something now? Sir, welcome. Yeah, of course. Yeah, please. My point is that I was just touching upon the idea of a person will come and meet you. All the commercial and technical things. I know a transportation cost from any across the state. If the factory is not in Calcutta or Orissa, there will be a variation of the cost as far as the transportation is concerned. But because since we are having this session online, what I can do after finishing session, I will discuss with my team. Will discuss with you. Then whatever the commercial terms and prices and all the stuff. Since you have a vast experience, I appreciate. I won't be able to open the commercial terms online right now. So definitely, I will do my level best to help you out, because at the end of the day, it is a revenue for the company which we will never lose at any cost. So be assured about that. Yeah. Stars. Next thing is this. It is my If you will make good payment now, you can get a good doctor, good engineer, and a good advocate also. But it is very difficult to get one good applicator. To develop business, good applicators are necessary to establish your product. In this, you know what? I will tell you one thing, sir. For you have to make the applicators a training program. Yes. What is your planning? For that, what is your planning? Sir, can I just speak now? My point is there are a lot of this is also part of a planning which are online right now. I have got about 800 applicators across India who are using our products across all regions of India, right? And we are continuously upgrading the skills of the applicator, the masons also through our 15-20 days gap programs across all cities. And we will be just to inform you online right now, we will just next 15-20 days, there will be an applicator training program which will be conducted by our company, Bulwark Conchem online. So we understand where the product, which is our target audience, we understand whom we have to make skills person. We understand where we have to get our technical collaboration. We understand where we need to serve our customers through what basis. And we running a company over here do understand that valuable feedback of the customers. So I am not telling you for the sake of telling you. There are a lot of people within your vicinity who are online right now with me, right? So I will definitely love to speak to you in person directly and take it forward, because we are running. We know there are certain parameters which need to be followed.
one Sir. aspect of our sales and revenue generation is that applicator, right? If the product is not being used with right They are the backbone specifications, of your company. They are the backbone of sir, your company. every Your single growth, person, see, your growth is our growth is your growth. sir, वही आप लोग हो तभी हम लोग हैं. So my point is, we will give you assurance that our product will be quality-wise absolutely great. The prices will be very competitive as far as other brands are concerned. That's what I'm assuring you. And as far as network of our distributors and all things are concerned, we will definitely try to help you out with best possible commercial terms, which can definitely add to you to Bulwark family and start using the products. That's my assurance to you. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Sir, may I ask something? Sir, so can I ask? a lot of other people are asking about, is there any, Sandeep Mangrolia ji is asking, is there any career opportunities in this field for research aspirations? Definitely, if you have taken civil engineering as a core specialization, you can definitely opt for concrete, or you can go for more research related to use of admixtures. Then you can move to the evaluation of curing compounds. You can associate with the CSIR. A lot of CSIR firms are there. This major organizations, IIT Delhi, Bombay, other, even your organization definitely doing it. Okay, and you can associate, like you can do a lot of research in this field. Definitely, there is a lot of scope. Any questions like regarding? Can I ask something? Yes, please. Yes, sir. Thank you, sir, for enriching us with such good, wonderful knowledge, sir, about waterproofing. Very nice session, sir. Thank you very much, sir. Sir, I wanted to ask as an engineer, sir, that I'm new to this field. I just have 2 years of experience, sir. So, sir, I wanted to know that are there any courses or are there any trainings from your side? So we could learn more about the products. We can give more accuracy at early stages that this product will be suitable. Previously, FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce, was doing this, but now they are doing or not doing, I need to find out. Yes. I can give you certain links by which you can enhance. Basically, these are short-term courses by which you can improve and enhance your knowledge. And the most important thing which you can take care is always go to particular sites, try to experiment and explore the things which is going at site. Simple. The more you see the sites, the better you can understand the site. And you can read the ASTMs, like the standards, the Indian standards, which are used as per the requirements. अब साइट में सिर्फ कंक्रीट तो होता नहीं है, वुडन फ्लोरिंग भी होता है, वॉल पुट्टी भी होता है. So every product has a different standard and different instructions need to be followed for the usage. अगर आप उसकी recommendations पढ़ लें मैन्युफैक्चरर की, तो 90% आप उस चीज में प्रॉब्लम से बच जाएंगे जो आपको प्रॉब्लम आ रही होती है. अभी कहीं नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वहाँ पानी आपने बिल्कुल नहीं डाला रखा, बिल्कुल ड्राई हो रहा है, अब नॉर्मल पुट्टी लगाएंगे बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगी. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई वहाँ पर स्प्रिंकल सम वाटर. ठीक है ना. अभी कहीं जो है कॉन्क्रीटिंग करने जा रहे थे, वहां पर पता है कि पुराना कॉन्क्रीट है तो उसका सरफेस प्रिपरेशन करना है नहीं करना, दिस इज वन पार्ट. बॉन्डिंग एजेंट लगाना है नहीं लगाना, ये बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं. हम पे बहुत प्रेशर आ जाता है 8 घंटे 12 घंटे वहाँ काम करके. तो स्पेशली जो साइट हैंडल करते हैं इंजीनियर्स, उनके लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं, आप क्यूसी का भी काम देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. So that will give you a learning and lasting experience. Yes, sir. वो it is always better and try to get a very good internship कहीं से बढ़िया जगह से मिले. तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी सीखने को मिल जाती हैं अगर आप छोटे से. Sir, as new products are coming every day for waterproofing, so are there any new products we should study more in detail? And sir, I have said you can study crystalline based waterproofing and coating. Crystalline. Yes. So we can suggest them to the clients, sir. We can suggest them to the clients. Yes, it can be done. But see, it is always better to understand the design
द एस्पिरेशन ऑफ द एंड यूजर, उसको कितना पैसा लगाना है और क्या उसका स्कोप ऑफ वर्क है, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है ना। वहां पर आपको उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा कि किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन होनी है। हो सकता है बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन हो, लेकिन बट एट द वेरी सेम टाइम वो पता होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन कैसे होनी है। I believe I have cleared your point, है ना? Yes, sir. Yeah, sir, one more request, sir. Sir, please share any brochure or any details of the workshop conducted on your behalf or like the organization. So, as students, Definitely. We do have everything. Yes, we do have everything with us. No problem with that. Okay. If you want brochure, Ritika will send the details. You can note down the name of the concerned person, Mr. So my name? Right. Your name. Vikram Singh. Mr. Vikram Singh. And in the entire group, we will definitely share the brochure so that it will be easy for you to understand the products. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. So, sir, I'll mention my details on the chat box, sir. Please, okay, no problem. If it is there at the chat box, she will be able to do it. And the person who is like hosting as of now, I request you to like share the entire video with us. We can retaliate it and we can answer the queries at the chat. Hello. Box, right? Hello. Hello. Yes, sir. Hello. I just Hello. on the chat box. Hello. Hello. Am I audible to you? Yes, sir. With lot of disturbances. I'm so sorry. Sir, good evening, sir. I am Ullas Kothari from Madhya Pradesh. Yes, Mr. Ullas, please tell me. Sir, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, irrespective of branch. I am from electrical branch, बाकी मुझे आपके सेशन में बहुत इंटरेस्ट आया और बहुत एंजॉय किया मैंने और बहुत नॉलेज बढ़ा सर, इसके लिए पर्सनली थैंक्स। सर, आपको उससे फायदा होना चाहिए, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, ये आप यदि मेरे मुझे देख पा रहे तो ये सर छत के बारे में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा, 2 मिनट, क्या आप गाइड कर सकते हैं सर? ये आपका नॉर्मल आरसीसी है स्ट्रक्चर? हाँ सर, ये जो छत जो दिख रही है, हमारा घर करीब 35 साल पुराना है सर, और छत के ऊपर आरसीसी किया हुआ और उसके ऊपर टाइल्स लगी हुई है सर। अच्छा, तो यदि हमें वाटर प्रूफिंग करना है तो टाइल्स के ऊपर ही करना पड़ेगा या टाइल्स उखाड़ना पड़ेगी? और फिर जो मैं बता देता हूँ, इसकी स्कीम बता देता हूँ। अगर आपका पुराना मनोज जी 2 मिनट देने पड़ेंगे, मैं इनको बता देता हूँ। उल्लास जी, आप व्हाट यू कैन डू इज कि आप सिंपली, अगर देखिए 2 तरीके हैं आपके पास में जी। पहला तरीका है कि आप पैसा बचाना चाहते हैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सारा टाइल निकाल के मदर स्लैब, मतलब मदर स्लैब तक पहुंच जाएं और वहां पर उसकी दोबारा से रीलेइंग करें सुटेबल मोर्टार, ठीक है ना, स्क्रिड लगा दें और स्क्रिड लगाने के बाद में उसमें वाटर प्रूफिंग करें और वाटर प्रूफिंग करने के बाद में कोनों का ध्यान रख के और बोर पैकिंग का ध्यान रख के स्लोप बनाते हुए, ठीक है ना, आप स्ट्रेट कर दें उसके ऊपर, आपको आपके स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके जो टाइल्स हैं, अगर आपके चटके हुए नहीं हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी इसमें बहुत सारा पानी बारिश का नहीं घुसा हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप टाइल्स को कटर मशीन से लेकर, देखिए कोई भी मतलब ऐसे बोलेगा नहीं, सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने टाइल्स को कटर मशीन से 3 mm से 5 mm या 7 mm तक के 5 mm तक में उसको कटिंग करके ज्वाइंट बना लीजिए और उनको ज्वाइंट का जो सुटेबल टाइल ग्राउट है उससे फिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो उससे भी आपको काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर ऐसा है। या फिर आप मुझे फोटोग्राफ भेजिए ऊपर से, सो दैट मैं उसको देख सकूं एक बार, है ना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन। हाँ, इसको अगर आप ज्वाइंट फिल कर लेते हैं तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इट इज बेटर कि साइज ऑफ टाइल्स क्या है ये बता सकते हैं आप? सर 10 by 10 इंच की जो होती थी पुराने समय, मोज़ेक टाइल्स वो है सर जी, मोज़ेक टाइल्स है। अच्छा, तो आप मेरे को कुछ फोटोग्राफ दीजिए और आप ये असेस करके बताइए कि अगर वहां बहुत सारे क्रैक्स हैं बड़े बड़े जी, तो आपको क्रैक्स भी ठीक करने पड़ेंगे और टाइल को भी ठीक करना पड़ेगा, काफी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप उसे रिमूव कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑल्सो गुड, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा, अगर आप उसको फुल्ली कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं,
रिमूव करिए और उसमें रिपेयरिंग करके वाटर प्रूफिंग करिए, आपको वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपका जहाँ पानी भी रुका हुआ होगा, हो सकता है हनीकॉम हो, जगह जगह पर हनीकॉम हो, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, तो आप जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपके टाइल जॉइंट से पानी रिस रहा होगा, वो अगर रुक गया तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी टाइल भी बहुत पोरस है, टाइल भी अगर बहुत पोरस है आपके, तो उस सिचुएशन में आप वाटर रिपेलेंट कोटिंग उस पर कर सकते हैं। 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी टाइल के जॉइंट में। सर बस 1 मिनट और लेना चाहूंगा मैं। यदि हम उसकी टाइल्स उखाड़ कर जो उसकी मदर सरफेस है उस पर वाटर प्रूफिंग कर देते हैं, तो उसके ऊपर वापस टाइल्स लगाने से कुछ फायदा हो सकता है क्या, कि केवल वाटर प्रूफिंग से हो जाएगा काम? वो तो ब्यूटिफिकेशन है ना, आप चाहते हैं उस पर चलना जी, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टाइल लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें, नहीं लगाते हैं और केवल वाटर प्रूफिंग ही रखते हैं हम, तो मतलब कुछ कुछ टाइम तक चल जाएगा ये? अच्छा, देखिए अगर आपकी रूफ 30 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है ना, 30 मीटर्स, और छोटी रूफ है 30 मीटर से, तो उस सिचुएशन में आप पॉलीमर बेस्ड वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं। आपको 2 कोट वाटर प्रूफिंग के करने हैं और तीसरा कोट आपको स्क्रिड का करना है। स्क्रिड होता है, मतलब आपको जो है ये जो 2 कोट वाटर प्रूफिंग करके आप उसको ब्रश टॉपिंग की तरीके से स्क्रिड करेंगे, उससे भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर की जो लेयर है, जो स्क्रिड है, जो या फिर प्लास्टर रहेगा, इस प्लास्टर तो इतना नहीं चल पाएगा, लेकिन स्क्रिड कुछ टाइम बाद चटक जाएगा। लेकिन उससे घबराइएगा मत, वाटर प्रूफिंग इंटैक्ट रहेगी, ये एडवांटेज रहेगी, अनलेस एंड अनटिल अर्थक्वेक आता है। कोई ऐसा लोड तो नहीं है जिसकी वजह से बिल्डिंग कहीं से बैठ रही हो, या फिर कोई जिगजैग टाइप के क्रैक्स आ रहे हो आपके स्ट्रक्चर में साइड लाइन से दीवारों पे? नहीं सेटलमेंट क्रैक तो नहीं है ना? ठीक है, नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। welcome always. Sir, I wanted to know, in this condition is latex coating suitable? सर देखिए अगर आपको देखिए एक्रिलिक पॉलीमर ज्यादा बेटर रहा है इसमें, जहां पर वेदर बहुत ज्यादा चेंज होता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेटेक्स वहां चटक जाता है, ये लेटेक्स के साथ प्रॉब्लम रहती है। तो अगर जहां वेदरिंग चेंज बहुत ज्यादा नहीं होती, जैसे कि आप मुंबई देखें, कोस्टल एरियाज के अंदर ठंडी और गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना, तो वहां लेटेक्स आपके ज्यादा सक्सेसफुल है इन कंपैरिजन टू पॉलीमर, एक्रिलिक पॉलीमर, तो और ज्यादा यूज भी करे जाते हैं। आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स रिकमेंड भी ज्यादा करते हैं। आप इनका कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्राइमर कोट आप लेटेक्स का कर दें और टॉप कोट आप एक्रिलिक पॉलीमर्स के कर दें, ये कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करे जाते हैं। और पहले एक स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ भी था CPWD में, लेकिन अभी अगर आप मेरी एडवाइस अगर माने, जो कि मैंने मुंबई में देखा है या बेंगलोर से मतलब इस तरफ चेन्नई की तरफ देखा है, तो कोस्टल एरियाज में इट्स बेटर टू गो फॉर SBR रादर देन पॉलीमर, एक्रिलिक पॉलीमर। दिस इज माय एडवाइस। ओके सर। सर मींस उल्लास सर के जो है वो लैटेक्स कोटिंग कर सकते हैं? कहाँ पर? उल्लास सर का जो है छत का जो मतलब इशू है, तो क्या उसमें लैटेक्स कोटिंग से सूटेबल है? जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ एक्रिलिक पॉलीमर करिए सर। MP से अगर बात कर रहे हैं तो पॉलीमर, एक्रिलिक पॉलीमर इज मच बेटर सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आई होप मतलब आई हैव ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चंस, द क्वेरीज एंड द कंसर्न्स। अगर किसी को फिर भी डाउट रहे तो डेफिनेटली वो मेरे को ईमेल करें, हमारी इन्फो वाली ईमेल है। Sir, I've given my email ID and my name and the number also, sir, for the brochure and the other details. We will get back to you for sure. Okay, thank you. Vikram Singh Rajput, right? Yes, sir. Thank you so much. I'm just ending this event. Thank you once again. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Shriransh is there? Shriransh? Can yes, sir. is my voice? I'm here, sir. Shriresh Bajpai? Yes, sir. Shriresh, can you hear my voice? Yes, sir. I can hear you, sir. So we request you like
to end this session. You can do that easily. Okay. Thank you so much, sir. And you give me a call after that. Even me being from someone from the IT branch, I enjoyed the session, and I also learned a lot from this. And I will end the session now. And the feedback link has been shared. And I hope everyone attends any further sessions we have with Bulwark and any further sessions we have from the civil department. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, entire the college, the professors, and the patient listeners, the students who are ready to go for the next level. Job के लिए आगे या career business के लिए जो भी whatever. My best wishes. Thank you.